So let's do this beautiful story, The Red Trap, which has been written by Selma Lagerlöf, who is a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. So in her stories, we find that there is a universal theme which runs through all of them. जितने भी स्टोरीज सेल्मा लेगोलॉफ ने लिखे हैं, हमने देखा है कि उन सब में एक चीज के बारे में बात हुई है, दैट इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल थीम that she shares in all her stories, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. कि इंसान, किसी भी इंसान के अंदर जो उसकी अच्छाई है, उसको सिर्फ प्यार से और उसको समझकर ही जगाया जा सकता है. If a person is following a wrong track, if he is doing something wrong, and if we want to bring him back to the right track by making him realize his strength, his goodness, that would be possible only through love and understanding. So this story is set amidst the mines of Sweden. See, Sweden is known for its mines. खानों के लिए, लोहे की खान के लिए, especially rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. जो कि जिसका बहुत जिक्र हुआ है हिस्ट्री में, और इस कंट्री से रिलेटेड जितनी स्टोरीज हैं उनमें भी. तो इस स्टोरी में भी हम देखेंगे कि स्वीडन की माइंस का काफी जिक्र हुआ है. इफ वी टॉक अबाउट द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, the story is told somewhat in the manner of a fairy tale. So why manner of a fairy tale? Because you will understand the kind of language that has been used in the story. It is as if जैसे परियों की कहानी हुआ करती थी, इस तरह से ऑथर ने इस स्टोरी को सुनाया है. So let's read the story now. Once upon a time. So the first and foremost hint that you get about this story narrated as a fairy tale is the way it starts. Once upon a time. एक बार की बात है. There was a man who went around selling small rat traps of wire. एक इंसान था, एक आदमी था जो हमेशा घूमता रहता था, सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर. जो चूहेदान होते हैं, वायर के, तार के बने हुए जो चूहेदान होते हैं, वो उनको बेचने के लिए अक्सर घूमता रहता था. Now you see, before beginning with this story, one thing that you need to understand, rat trap जिसको हम चूहेदान के नाम से जानते हैं, how do we trap rats into that? हम कैसे rats को पकड़ते हैं? हम उसमें कोई रोटी का टुकड़ा, कोई चीज का टुकड़ा, we always put that, which is known as bait, bait, bait. Bait means जो लालच किसी को फंसाने के लिए दिया जाता है ना, that sort of, like sometimes in the fish line also we put some bait so that we can catch fish. So similarly in the rat trap also we use that bait, huh? So this fellow who used to go around selling small rat traps of wire, जो ये तार के बने हुए चूहेदान बेचने के लिए घूमता रहता था. He made them himself at odd moments. ये जो rat traps थे, वो खुद उसने बनाए थे at odd moments. What does it mean? What does it mean at odd moments? It means that he never used to make them frequently. ऐसा नहीं है कि वो उनको जल्दी जल्दी बनाता था. कभी उसको टाइम लगा, कभी मूड हुआ तो बैठकर उसने ये rat traps बनाए थे. From the material he got by begging in the stores or at the big farms. And where did he get the material to make these rat traps? ये rat traps उसने उस मटेरियल से बनाए थे जो या तो किसी दुकान पे जाके उसने भीख मांगी हो, उनसे मतलब बेग किया हो कि मुझे प्लीज दे दीजिए, या फिर किसी बड़े फार्म से उसने बेग करके लिए हो. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन फिर भी ये जो बिजनेस था उसका, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep his body and soul together. So he had to resort to both begging. तो इसलिए resort to means he had to depend upon. He had to depend upon both. इसलिए उसको दोनों चीजों पे depend करना पड़ा. एक तो begging पे, भीख मांगने पे, and petty thievery. Petty मतलब छोटी मोटी, small, है ना? Small thievery you understand, theft, चोरी जिसको बोलते हैं, या फिर छोटी मोटी चोरी करने के लिए करके, to keep his body and soul together. Keeping body and soul together, it is a phrase which means to be alive, to keep himself alive. अपने आप को जिंदा रखने के लिए या तो उसको भीख मांगनी पड़ती थी या फिर छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती थी. Why? Because the business that he was doing of selling rat traps was not at all profitable. वो बिल्कुल भी profitable नहीं था. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. लेकिन उसके बाद भी, मतलब वो भीख भी मांगता था, रैट ट्रैप भी सेल करता था, चोरी भी करता था, लेकिन फिर भी उसके कपड़े जो थे वो बिल्कुल रैग्स थे, जिसे कहते हैं फटे पुराने, जो बिल्कुल बेकार कपड़े होते हैं उस तरह के थे. His cheeks were sunken, उसके जो गाल थे वो धंसे हुए थे,
and hunger gleamed in his eyes. Hunger, used to shine in his eyes. उसकी आंखों में ही भूख चमकती थी. So from this we come to know that he was living a very miserable life where it was difficult for him to earn his living properly. Of course, he could not earn. That is why he used to depend on begging and also theft, also thievery, also that he used to do. But even after that, he wasn't having proper food. Hunger used to shine in her eyes. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई नहीं समझ सकता कि कितना दुख भरा और कितना monotonous means dull life वो जो है जी रहा था. Such a vagabond, you understand, vagabond is a tramp मतलब जो आवारा होते हैं जिनके पास कुछ काम धाम नहीं होता. हाँ, so इस तरह के vagabond के लिए लाइफ कितनी डल होती है, कितनी दुख वाली होती है, कोई नहीं समझ सकता. Who plods along the road, जो घूमता रहता है. प्लॉड्स मीन्स वॉक, जो हमेशा वॉक करता रहता है, चलता रहता है रास्ते पर. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपने ही दिमाग में, अपने ही आइडियाज में. मेडिटेशंस हियर मीन्स आइडियाज, थॉट्स. अपने ही आइडियाज और थॉट्स में खोया हुआ वो सड़क पे आवारा चलता रहता है. किस तरह की दुख भरी और कितनी डल मोनोटोनस लाइफ होती है ऐसे लोगों की, ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये इंसान, he fell into a line of thought. Fell into a line of thought means उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसके बाद वो उसी के बारे में सोचता सोचता चला गया. Which really seemed to him entertaining. और ये जो line of thought था means the thought that came to his mind which made him to think further, it was really entertaining for him. He was he was amused to think like that. उसको मजा आ रहा था ये सोचने में. उसके दिमाग में एक ख्याल आया, उस ख्याल से वो और सोचता चला गया उसके बारे में, and he was literally enjoying thinking about that. उसको मजा आ रहा था वो सोचने में. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea. वो naturally अपने rat traps के बारे में सोच रहा था, है ना. और ये rat traps के बारे में सोचते सोचते अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया that the whole वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उसके आसपास जो ये पूरी दुनिया है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, ये पूरी दुनिया, इसमें जो भी लैंड है, समंदर हैं, जो सिटीज हैं, जो विलेजेस हैं, ये पूरी दुनिया was nothing but a big rat trap. उसके दिमाग, suddenly he became philosophical and he delved into a line of thought and he found it very amusing. उसको बड़ा मजा आया ये सोचने में. और वो क्या सोच रहा था, पहले उसने शुरू किया अपने रैट ट्रैप से, और वो रैट ट्रैप के, अपने ही रैट ट्रैप्स के बारे में सोचते सोचते अचानक से उसको ये ख्याल आया कि ये पूरी दुनिया, इसमें जो भी कुछ है, ये जो पूरा संसार है, इट इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये बहुत बड़ा चूहेदान है. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. और ये संसार जो एग्जिस्ट हुआ है, इसकी जो ये जो उत्पन्न हुआ है, जो इसकी स्थापना हुई है, ये कुछ और काम के लिए नहीं हुई है. सिर्फ किस लिए हुई है, सिर्फ लोगों के लिए बेट सेट करने के लिए, लालच सेट करने के लिए. बेट कैसे, ऐसा लालच उनको दो कि वो इस संसार में फंस के रह जाते हैं फिर, है ना. सी, इट ऑफर रिचेस एंड जॉयज. ये हमें पैसा देता है संसार, ये हमें खुशियां देता है. शेल्टर देता है, शेल्टर एंड फूड, हमें रहने की जगह, खाना, हीट एंड क्लोथिंग, गर्मी देता है, कपड़े देता है. एग्जैक्टली as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed on him, and then everything came to an end. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि इस चूहेदान में चीज या कोई पॉक का पीस जो है वो बेट की तरह लगाया जाता है, और जैसे ही कोई टेम्प्ट होकर उस बेट को पकड़ने के लिए जाता है, देन ऑफ कोर्स जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है, वो चूहेदान एकदम से बंद हो जाता है, एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और फिर उसका जीवन वहीं खत्म हो जाता है. So philosophically, this thought came to his mind that this world is nothing but it's a kind of rat trap, and all the pleasures, joys, riches that the world offer to us, वो हमें जो भी कुछ खुशियां या जो भी कुछ खाना है, रहना है, मकान है, कपड़े हैं, ये सब क्या है, दीज आर नथिंग बट दे आर काइंड ऑफ बेट्स ओनली. वो हमें टेम्प्ट करने के लिए, हमें टेम्प्ट करने के लिए वो बेट्स हैं, और हम उन बेट्स में फंसकर इस संसार में ही फंस के रह जाते हैं. एंड then everything comes to an end, and our life even comes to an end running after these baits only. Now if we think of it deeply, it was actually a very deep thought. In what way was it? Because this is what usually happens.
when we are working at a place, we are earning some, then we want more, then we want more. हमारे पास आज एक छोटा घर है, फिर हम बड़ा घर सोचते हैं, गाड़ी है, हम सोचते हैं बड़ी गाड़ी आ जाए. So ये सब क्या है? These are kind of baits only that this world offers. ये वर्ल्ड हमें ये सारे बेट्स ऑफर करता है, और हम क्या करते हैं? इन्हीं बेट्स के पीछे भागते भागते एक दिन हम लोग मर जाते हैं. Our life comes to an end. All right. So suddenly this was the thought that this vagabond had while walking on the roads. All right. So the world had of course never been very kind to him. ये दुनिया उसके लिए बहुत अच्छी तो कभी थी नहीं, बहुत दयालु नहीं थी. So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. और इसलिए उसको एक बहुत अलग ही, unwanted means unusual, unwanted means unusual, तो इसलिए उसको एक बहुत ही unusual खुशी मिल रही थी, एक अजीब सी खुशी मिल रही थी. टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इस तरह से इस दुनिया के बारे में बुरा सोचकर उसको बड़ी खुशी मिल रही थी. इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज. अब ये उसका एक चेरिश्ड पास टाइम बन गया. चेरिश्ड मीन्स नर्चर्ड, नर्चर्ड है ना. ये एक उसका नर्चर्ड पास टाइम बन गया, ये उसका एक शौक बन गया. ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, ड्रेरी मीन्स डल, प्लॉडिंग्स मीन्स वॉकिंग्स, कि जब वो इस तरह से डल तरीके से जब चल रहा होता था, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर. उसको मजा आता था ये सोच सोचकर, खासकर उन लोगों के बारे में जिनको वो जानता था कि किस तरह से इन लोगों ने अपने आप को एक डेंजरस स्नेयर, स्नेयर मींस ट्रैप, डेंजरस ट्रैप में फंसा लिया है. एंड ऑफ अदर्स हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और बाकी लोगों के बारे में सोचकर जो अभी भी उस बेट के चक्कर काट रहे हैं. Alright, so it became his unusual pastime, his cherished pastime, that he used to think of people. वो हर इंसान को देख के कहता था, देखो ये तो फंस गया, देखो ये अभी भी उसके चक्कर काट रहा है. So he liked to think about people like that and about this world. Why? Because this world had never been very kind to him. क्योंकि ये दुनिया कभी भी उसके लिए बहुत अच्छी नहीं थी. One dark evening, he was trudging along the road. He caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक रात को जब वो when he was trudging along the road, trudging actually means walking. जब वो वैसे ही रास्ते पर चल रहा था, he caught sight of a little grey cottage. उसकी नजर पड़ी एक छोटा सा कॉटेज था, झोपड़ी टाइप थी ग्रे कलर की, by the roadside, जो रोड साइड पर एक डल झोपड़ी सी थी, उसकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ी. एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट. और जैसे ही उसकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ी तो उसने दरवाजा नॉक किया कि वो उसको रात के लिए शेल्टर दे दें, मतलब रात को वहां पर रुकने दें. नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसको मना भी नहीं किया गया. इंस्टेड ऑफ द sour faces which ordinarily met him, बजाय sour faces के, मतलब otherwise people used to make faces, sour means unpleasant, unpleasant faces, जो कि अक्सर उसको देखने को मिलते थे. जैसे ही वो कभी किसी का दरवाजा खटखटाता था बेगिंग के लिए, या जैसे यहाँ पर वो शेल्टर चाह रहा था, ओवरनाइट शेल्टर, तो अक्सर क्या होता था, पीपल यूज्ड टू मेक अनप्लेजेंट फेसेस. लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था. इंस्टेड ऑफ द sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man, जो यहाँ का झोपड़ी का जो ओनर था, मतलब इस कॉटेज में जो रहता था, जो एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसके ना बीवी थी ना बच्चा था, was happy to get someone to talk to in his loneliness. उसको तो उल्टा खुशी हुई कि कोई उसके अकेलेपन में आज उसके पास बात करने के लिए होगा. तो ये सोचकर he did not refuse him when he asked for overnight shelter. He readily agreed to that. Immediately he put the porridge pot on the fire. जैसे ही वो बंदा, मतलब ये जो रैट ट्रैप सेलर है, जब वो वहां गया तो उसने जो पोरेज पॉट था, पोरेज दलिए को कहते हैं, उसने एक पोरेज पॉट जो है वो फायर पे रखा, मतलब चूल्हे पर रखा. एंड gave him supper. Supper means dinner. So instead of the sour faces which ordinarily met him, अक्सर वो किसी से जब ऐसा पूछता था तो उसको बड़े unpleasant faces मिलते थे. The owner, who was an old man without wife or child, जो इस कॉटेज का मालिक था, जो कि एक बूढ़ा आदमी था जिसके कोई ना वाइफ थी ना उसका कोई बच्चा था, he was happy to get someone to talk to in his loneliness. वो बड़ा खुश था कि कोई उसके अकेलेपन में उससे बात करने के लिए उसको मिल गया है. Immediately he put the porridge pot on the fire. उसने उसके आते ही तुरंत जो दलिए का पॉट था वो चूल्हे पर रखा. And gave him supper. Supper means dinner. और उसने उसको डिनर भी खाने के लिए दिया. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll. और फिर उसने जो एक उसका tobacco roll था, बड़ा सा एक तंबाकू का रोल था, उसमें से उसने carved off means cut. He cut such a big slice. एक बड़ा सा slice उसने काटा tobacco roll से. And it was enough both for the stranger's pipe and his own. जो कि स्ट्रेंजर के पाइप के लिए और उसके अपने पाइप के लिए सफिशिएंट था. Finally, he got out an old pack of cards and played Majolis with his guest until
बेड टाइम। और फिर उसने एक पुराना सा अपना पैक ऑफ कार्ड्स निकाला, जो आप समझ जैसे ताश होते हैं हमारे यहाँ, इस तरह से उसने कार्ड्स का एक पैक निकाला पुराना सा, और फिर उन दोनों ने बैठकर मिजोलिस खेला, विच वॉज अ गेम। ऑलराइट, बेड टाइम तक, सोने के समय तक फिर उन्होंने गेम खेला। सो बोथ ऑफ देम हैड अ गुड टाइम, यू नो, दैट वे द ओल्ड मैन वाज आल्सो अलोन and this fellow as well, because you know he was never treated like this, the way the old man treated him. So he must be liking it, of course. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. और ये जो old man था, he was as generous with his confidences. Confidences means secrets. वो जैसे tobacco और porridge को लेके उसके साथ बहुत generous था ना, इतना liberal था, उसी तरह से वो अपने secrets को लेके भी बहुत generous था. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramso Ironwork and had worked on the land. उसने अपने इस गेस्ट को ये भी बता दिया कि इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मतलब जब वो जवान था, जब वो काम कर सकता था, हिज होस्ट मींस दैट ओल्ड मैन, कि वो जो ओल्ड मैन था, ही वाज अ क्रॉफ्टर, वो एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर कौन होता है? वन हु वर्क्स ऑन अ स्मॉल फार्म, जो कि एक छोटी खेती, फार्म लैंड, एक छोटी खेत पर काम करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रॉफ्टर। तो एक रामसो आयरन वर्क के यहाँ पर वो एक क्रॉफ्टर था एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वो जमीन पर काम किया करता था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब लेकिन बुढ़ापे की वजह से वो डे लेबर तो कर नहीं सकता था, मजदूरी नहीं कर सकता था। इट वाज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब उसके पास एक काउ थी विच यूज्ड टू गेट हिम मनी, जिसका दूध बेचकर वो पैसा कमाता था। यस, दैट बॉसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बॉसी इज दैट काउ, है ना, वो जो काउ थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। क्रीमरी इज एक्चुअली जिसको हम डेयरी बोलते हैं, है ना, वेयर क्रीमरी इज अ प्लेस वेयर बटर एंड चीज आर मेड। डेयरी आपने, हम कॉमनली जो बोलते हैं। तो उसकी जो वो गाय थी, दैट काउ वाज रियली गुड बिकॉज इट यूज्ड टू गिव इनफ ऑफ मिल्क दैट ही कुड सेल टू दिस क्रीमरी। वो इस क्रीमरी पर उस मिल्क को बेच देता था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और पिछले ही महीने उसको जो है 30 क्रोनर्स मिले थे पेमेंट के तौर पर। क्रोनर इज द करेंसी दैट इज यूज्ड इन दैट कंट्री, ऑलराइट। सो ही अर्नड 30 क्रोनर out of by selling his cow's milk to that creamery. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, लेकिन ये जो स्ट्रेंजर है, उसको शायद ऐसा लगा होगा, मतलब जो ओल्ड मैन था, उसको शायद ऐसा लगा दैट द स्ट्रेंजर इज इनक्रेडुलस, दैट ही इज अनबिलीविंग, कि शायद वो उसकी बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा है कि गाय का दूध बेचकर उसने 30 क्रोनर्स कमा लिए। तो शायद लगा, उसको ऐसा लगा कि जो स्ट्रेंजर है वो इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहा है। फॉर बिकॉज द ओल्ड मैन गॉट अप, क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी था वो खड़ा हुआ, अपनी विंडो तक गया, वहां से उसने अपना एक लेदर पाउच निकाला जो कि एक छोटी सी कील पर टंगा हुआ था। इट वॉज हंग ऑन अ नेल, जो कि एक कील पर टंगा हुआ था इन द वेरी विंडो फ्रेम, उसी विंडो के फ्रेम में एक कील थी, उस पर उसका लेदर पाउच टंगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroners 10 kroner बिल्स, और उसमें से उसने 3 10 kroner के बिल्स, मतलब जो नोट थे, वो निकाले। These he held up before the eyes of his guest, और अपने गेस्ट की आंखों के आगे उसको दिखाने लगा, nodding knowingly, सिर हिलाते हुए जानबूझकर, and then stuffed them back into the pouch, और फिर उसने उनको उन्हीं पाउच में, उसी पाउच में ठूस दिया। The next day both men got up in good season. अगले दिन जो है वो दोनों जो है, in good season means early morning, दोनों जो है बहुत सुबह उठ गए, both of them got up early morning. Alright, the crofter was in a hurry to milk his cow. अब क्रोफ्टर तो सुबह सुबह इसलिए उठा क्योंकि उसको सुबह उठकर अपनी गाय का दूध निकालना होता था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. और शायद जो गेस्ट था वो ये सोचकर उठ गया कि क्योंकि जब जो घर का मालिक है, जब वो इतनी सुबह उठ गया है, तो फिर उसको भी सोते नहीं रहना चाहिए, उसको भी उठ जाना चाहिए। They left the cottage at the same time. दोनों एक साथ ही उस झोपड़ी से बाहर निकले। The crofter locked the door and put the key in his pocket. क्रॉफ्टर ने दरवाजा लॉक किया और पॉकेट में चाबी डालकर चला गया। The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. और जो रैट ट्रैप सेलर था, वो भी, उसने उसको गुड बाय किया, थैंक्स किया, और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। But half an hour later,
The rat trap peddler stood again before the door. लेकिन ठीक आधे घंटे बाद जो रैट ट्रैप पेडलर था वो वापस उसी दरवाजे के सामने खड़ा था. He did not try to get in. उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, however. हालांकि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की. He only went up to the window. वो सीधा विंडो के पास गया. Smashed a pane. जो विंडो पेन था, जो उसका शीशा था, उसको तोड़ दिया. Alright. Struck in his hand and got hold of the pouch with the 30 krona. हालांकि उस दरवाजे को तोड़ते हुए उसने अपने हाथ से उसको स्ट्राइक किया और वो जो उसका विंडो पेन था वो तोड़ दिया और वहां से उसने वो पाउच पकड़ा जिसमें कि 30 क्रोना रखे हुए थे. He took the money and thrust it into his own pocket. उसने वो पैसा लिया और सीधा अपनी जेब में डाल लिया. Alright. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और फिर वो जो leather pouch था वापस उसको वहीं पे टांग दिया और वहां से निकल गया. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब वो जो अपने पॉकेट में जो उसने उसके 30 क्रोनस चुरा लिए थे, उनको पाकर बड़ा अपने आप को स्मार्ट फील कर रहा था. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. अब लेकिन उसके बाद उसको ये रियलाइज हुआ कि ये चोरी करने के बाद अब उसको पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इफ ही ट्राइज टू फॉलो हिम, अगर उसको इफ ही ट्राइज टू चेज हिम, अगर वो कोई पुलिस कंप्लेंट करता है, कोई उसको पकड़ने आएगा तो पब्लिक हाईवे पे ही उसको ढूंढेंगे, है ना. तो देन ही थॉट कि ही शुड नॉट गो टू पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड. उसको मेन रोड छोड़ देनी चाहिए एंड ही शुड टर्न ऑफ इनटू द वुड्स. अब उसको जंगल के रास्ते से जाना चाहिए. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लगा बाद में वो और खराब हो गया. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट. क्योंकि वो जो जंगल था बहुत बड़ा था और बड़ा कंफ्यूजिंग था. विच ही हैड गॉट इनटू, जिसमें कि अब वो घुस गया था. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. उसने बहुत कोशिश की कि उसको रास्ता पता चले, वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहे. बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. लेकिन उस जंगल के जो रास्ते थे वो कहीं भी मुड़े चले जा रहे थे, कभी पीछे कभी आगे, बहुत ही अजीब तरीके से. He walked and walked without coming to the end of the wood. वो चलता रहा लेकिन उस जंगल का एंड आ ही नहीं रहा था. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और इतना चलने के बाद उसने रियलाइज किया कि वो तो फॉरेस्ट के उसी पार्ट में ही घूमे चला जा रहा है. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. और तभी अचानक से फिर से जो उसका वही थॉट था ना, ये संसार, इस दुनिया और उसके और इस रैट ट्रैप के बारे में, वही थॉट उसके दिमाग में आने लगे. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. अब उसको लगा कि अब उसका अपना टर्न आ गया है. You know, earlier he used to make fun of others. Earlier he used to be amused by looking at others how they are trapped in this world. But now he thought that he himself was trapped in this world. अब उसको लगा कि अब उसकी बारी आ गई है. The whole forest with its trunks and branches, ये पूरा जंगल, ये जितने पेड़ हैं, उनकी टहनियां हैं, its thickets and fallen logs, जो जितनी ये घनी झाड़ियां हैं, thickets मीन्स जो घनी झाड़ियां होती हैं, fallen logs जो गिरे पड़े हुए हैं यहाँ पर पेड़ों के टुकड़े, closed in upon him like an impenetrable prison. ये सब उसके आसपास सबने उसको इस तरह से जकड़ लिया था, like an impenetrable means which cannot be passed through, जिसको आप भेद नहीं सकते, है ना. इस सब ने उसको ऐसा जकड़ लिया था जैसे कि ये एक ऐसी जेल हो जिसको वो कभी पार नहीं कर पाएगा, जिसको वो कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो कभी नहीं भाग पाएगा. As he walked along, the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब वो उस पैसे के साथ, mean he took that forest area when he was walking along with that money in his pocket, वो उस पैसे के साथ जब चल रहा था, तो he was very happy with himself. And what was he happy about? He was happy about his smartness. उसको लग रहा था that he has played very smart by stealing that money और उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, बड़ा intelligent काम किया है. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. हालांकि उसको ये भी रियलाइज हुआ कि पहली बात तो he could not continue with the public highway. उसको पब्लिक हाईवे पे कंटिन्यू नहीं करने की उसमें हिम्मत नहीं थी. He dared not. वो इतनी हिम्मत नहीं कर सका कि वो पब्लिक हाईवे पे जा सकता. But must turn off the road. उसको मेन रोड से टर्न ऑफ हो जाना चाहिए. टर्न ऑफ मीन्स he should distract from that and he should deflect from that main road and he should take another this path into the woods. Woods means forest, जंगल के रास्ते से. During the first hours, this caused him no difficulty. शुरू के कुछ घंटों में तो उसको कोई परेशानी नहीं हुई. Later in the day, it became worse. लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया,
मतलब when it was getting dark, it became worse. अब ये खराब होता जा रहा था, for because it was a big mistake, big and confusing forest, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और बहुत confusing forest था, which he had gotten into, जिसमें वो घुस गया था. He tried to be sure to walk in a definite direction. उसने कोशिश की कि वो बहुत sure होके चले that he should walk in a definite direction, एक direction पकड़ के रखे. But the paths twisted back and forth so strangely. लेकिन जो रास्ते थे वो इतने घुमावदार थे, वो कहीं से भी घूम जाते थे बहुत अजीब तरीके से. He walked and walked without coming to the end of the wood. वो चलता रहा और वो फॉरेस्ट जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और अंत में उसको ये realize हुआ कि वो तो एक ही फॉरेस्ट के एक ही पार्ट में घूमे चले जा रहा था. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. तभी अचानक से उसके दिमाग में वो थॉट्स आने लगे जो अक्सर आते थे about the world and the rat trap, इस दुनिया और चूहेदान के बारे में. Let me recount those things. He always used to think this was an amusing thought for him as a pastime. Whenever he was just walking around like that only, as he could not sell his rat traps. तो एक थॉट उसके दिमाग में अक्सर आता था. एक दिन अचानक से उसके दिमाग में ये थॉट आया, ये आइडिया आया, and he started liking the idea and he started overthinking about it. वो because it was an amusing idea to him. तो आइडिया क्या था? उसको लगा कि ये जो रैट ट्रैप है, जैसे जो वो वायर के रैट ट्रैप बेचता था, उसको लगा उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रैट ट्रैप ओनली. ये जो दुनिया है ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक चूहेदान है. जिस तरह से एक चूहे को पकड़ने के लिए यू ऑलवेज पुट अ बेट. Bait means some roti ka tukra, some cheese, piece of cheese or something you put, so that when the rat comes into that box, whatever it is, and he tries to get that, suddenly it gets locked into it and the rat is trapped. So similarly, all these pleasures, joys, money, wealth, whatever we are getting in this world, success, fame, goodwill, ये सब जो भी कुछ है, these bonds of love, relatives, friends, ये सारे जो है family, he started thinking that all these worldly pleasures, they are the bait. वो एक बेट है जो हमें इस दुनिया में फंसा के रखती है. इन्हीं बेट को पाने की वजह से, जैसा हमने पहले डिस्कस भी किया, आज हमारे पास एक घर है, हम सोचते हैं बड़ा घर हो जाए, एक गाड़ी हम सोचते हैं और बड़ी हो जाए. अगर वी आर ऑलवेज chasing one or the other thing, and we are always running after these worldly pleasures, and suddenly he had this idea that this world is nothing but a rat trap, and all the pleasures and joys that it offers are like baits which are used to trap human beings, which are used to trap humans. And after that, suddenly, what he started doing, वो किसी को भी देखता था ना रास्ते पे चलते हुए, तो हमेशा ये इमेजिन करता था, देखो ये अब इसके जाल में फंस गया है, देखो ये अब इसके जाल में फंस गया. सो इट वाज एन अम्यूजिंग थॉट व्हिच ही यूज्ड टू यूज एज हिज पास टाइम टू एंजॉय. नाउ व्हेन ही हिमसेल्फ वाज स्टक इनटू दिस फॉरेस्ट, अब जब वो खुद उस फॉरेस्ट में फंस गया था, he wasn't able to get out of it. He somehow realized that he was walking around in the same part of the forest. At once he recalled his thoughts. तभी अचानक से ये जो थॉट था उसको याद आया about the world and the rat trap, इस दुनिया और इस चूहेदान के बारे में. Now his own turn had come. अब उसको लगा कि उसका अपनी बारी आ गई थी. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. उसने एक बेट से अपना बेवकूफ बना लिया था. And what was that bait? That was those 30 kroners. उसने उस बेट से अपना बेवकूफ बना लिया था and had been caught. और अब वो पकड़ा गया था. The whole forest with its trunks and branches, पूरा जंगल, उन trunk means trunk of the trees, जो वो पेड़ के तने हैं, and branches और उनकी शाखाएं हैं, its thickets and fallen logs. Thickets means bushes, जो उसकी झाड़ियां हैं, fallen logs हैं, जो पेड़ के तने गिरे पड़े हैं, closed in upon him like an impenetrable means जिसको भेदा नहीं जा सकता, like an impenetrable prison. ये सब जो हैं उन सब ने उसको क्लोज कर लिया था, बांध दिया था एक ऐसी जेल की तरह जिसको वो कभी निकल के भाग नहीं सकता था, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो कभी भी भाग नहीं सकता था. ऑलराइट. It was late in December. ये सर्दियों की बात है. Late in December means somewhere towards the end of December, जैसे 20-25 December के बाद लगभग. Darkness was already descending over the forest, and as you know, whenever it is cold, means during winters, it becomes dark very early, right? So darkness was already descending. Descending means coming down. Descending means coming down. वो darkness जो है, अंधेरा, वो already अब जंगल पे आ रहा था.
This increased the danger. अब उससे खतरा बढ़ गया था. And increased also his gloom and despair. Gloom and despair means sadness, sorrow. Sadness और sorrow is called gloom, despair. दोनों synonyms है, एक ही मतलब है. और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, खतरा बढ़ रहा था, और उससे उसका दुख भी बढ़ता जा रहा था. Finally, he saw no way out. अब उसको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था. And he sank down on the ground. और वो जमीन पर ढह गया. Sank down मतलब बैठना, एकदम थक के बैठ जाते हैं ना जिस तरीके से. Sinking down is that only. एक तो होता है कि sit down. Sit down means when you are doing it consciously in a proper way. But sink down means that सडनली व्हेन यू सी नो होप, आप बहुत परेशान होके एकदम से बैठ गए, थक के बैठ जाना, हार के बैठना जिसको बोलते हैं. सो ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. वो जमीन पर एकदम से बैठ गया. टायर्ड टू डेथ. इतना थका हुआ था, मरने की स्थिति में. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. और उसको अब ऐसा लग रहा था कि उसका अंतिम समय आ गया है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर ग्राउंड पर रखा, ही हर्ड अ साउंड. उसको एक आवाज सुनाई दी. अ हार्ड रेगुलर थंपिंग. थंपिंग मीन्स ठोकना जिसको बोलते हैं, जैसे आप हथौड़े से कुछ ठोकते हैं ना, दैट इज कुछ थंपिंग की उसको अचानक से आवाज आ रही थी. देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज. उसको कोई शक नहीं था कि ये क्या है. ही रेज्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप को खड़ा किया. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट. उसको समझ में आया कि ये पक्का कोई आयरन मिल है यहाँ पे. जैसे मैंने आपको बताया था कि the place where the story is taking place, it's like it's famous for iron ores, right? तो उसको पता था कि ये कोई आयरन मिल है जिसमें कि हथौड़े से स्ट्राइक किया जा रहा है आयरन को. There must be people nearby. जरूर यहाँ आसपास लोग होंगे. He summoned all his strength. Summoned means gathered. Gathered. उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की. Got up, खड़ा हुआ. And staggered. Staggered means crawled. Started crawling. जिसे कहते हैं ना खींच के चलना शरीर को. When your body is not allowing you to walk properly, so you have to drag. Crawled or drag. Drag is a better word. So he and dragged in the direction of the sound. उस जहां से आवाज आ रही थी उस डायरेक्शन में उसने अपने आप को ड्रैग करना शुरू कर दिया. द राम्सजो आयरन वर्क्स. अब ये कौन सी आयरन मिल थी? राम्सजो आयरन वर्क्स थी. द राम्सजो आयरन वर्क्स which are now closed down were not so long ago a large plant. ये राम्सजो आयरन वर्क जो कि अब बंद हो चुका था. लेकिन कुछ काफी अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था. व्हेन इट यूज्ड टू बी अ लार्ज प्लांट. ये एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था. विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज. फॉर्ज मतलब भट्टी जिसको बोलते हैं. स्मेल्टर इज अगेन अ मशीन. रोलिंग मिल्स के साथ एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज slid down the canal. Slid down the canal. Now, you see, do you know that when these people they work on these in these iron ores and iron mills, so of course they need big logs of wood. So how do they? Do you know one of the ways of transporting logs of wood is through rivers or canals? Right? So this is what we have been told कि when it used to be a very big plant, जब ये बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था, तो वहां पर समर टाइम में, खासकर गर्मियों के दिनों में, आप देखोगे कि जो बड़े बड़े ये जो हेवीली लोडेड बाजेस आर barges are boats. Barges are boats. You can write down. Barges means boats. जो flat boats होती है ना जिस तरह से, तो बड़े बड़े जो barges हैं, मतलब जो boats हैं, long flat boats which are used on rivers and canals, you know. And scows is another kinds of boats. These are also boats. हाँ, बाज एक तरह की बोट होती है जो लंबी सी फ्लैट बोट होती है. स्काउज आर अनदर काइंड ऑफ बोट. स्लिड डाउन द कैनाल. बहुत सारी जो बाजेस और स्काउज हैं वो आती थी कैनाल से. विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक. जो कि एक बहुत बड़ी इनलैंड लेक. इनलैंड मींस नेटिव लेक जो थी, जो एक्चुअली ये जो नावें थी, नौका जिसको बोलते हैं, दीज बोट्स, ये नहर में उतारी जाती थी, है ना. विच वॉज देयर. वो नहर जो कि एक बहुत बड़ी सी लेक से जुड़ी हुई थी. इट वॉज कनेक्टेड टू अ वेरी बिग इनलैंड लेक. ऑलराइट. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. और सर्दियों के समय में, सर्दियों के दिनों में मिल के पास की जो सड़कें होती थी, दे यूज टू बी ब्लैक. वो काली रहती थी. फ्रॉम द कोल डस्ट. कोयले की डस्ट से, है ना, कोयले से काली हो जाती थी. क्यों? क्योंकि जो ये चारकोल की क्रेट होती थी, बड़ी बड़ी क्रेट से जो कोयले की डस्ट थी वो झड़ती रहती थी.
सिफ्ट, यू अंडरस्टैंड, सिफ्ट मतलब झरना जिसको बोलते हैं, राइट? तो ये सारी रोड्स काली रहती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, एक दिन क्रिसमस से जस्ट पहले एक ऐसी लंबी अंधेरी शाम को, द मास्टर Smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. ऐसे ही एक शाम को क्रिसमस से पहले जो मास्टर स्मिथ था, मास्टर स्मिथ मतलब कि जो स्मिथ इज ब्लैक स्मिथ, लोहार जिसको बोलते हैं, तो मास्टर स्मिथ जो बड़ा होगा है ना रैंक में, एंड हिज हेल्पर और उसका असिस्टेंट सैट इन द डार्क फॉर्ज, फॉर्ज अगेन मींस भट्टी जिसको बोलते हैं, नियर द फर्नेस, वो फौज में बैठे हुए थे फर्नेस के पास, भट्टी के पास, एंड दे वर वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और पिग आयरन का वेट कर रहे थे। पिग आयरन कच्चे लोहे को बोलते हैं, ओके, जो रॉ होता है ना, जो कच्चा लोहा होता है, दैट इज कॉल्ड पिग आयरन, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको कि आग में रखा गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जिससे कि वो गर्म करके फिर क्या करते हैं उसको, दे पुट इट ऑन द एनविल, एनविल यू अंडरस्टैंड, एनविल इज अ काइंड ऑफ स्टैंड जिसपे कि लोहे को रख के फिर पीटा जाता है टू गिव इट अ shape, whatever shape you want to give it, right? So they were waiting for that iron, that pig iron. It was kept in the fire to be heated, and so that it gets ready to be put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. बार बार जो है उनमें से एक जना कोई खड़ा होता था, एक बड़ी सी लोहे की बार, एक बड़ी सी लोहे की स्टिक उन्होंने ले रखी थी जिससे वो उसको हिलाता था। ऑलराइट, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, फिर कुछ समय बाद वापस आ जाता था, ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, बिल्कुल वो ड्रिप कर रहा होता था, पर्सपिरेशन मीन स्वेटिंग, इतना पसीना आ जाता था इतनी सी देर में, that he used to sweat, though as was the custom, हालांकि as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. और क्योंकि जिस तरह से कस्टम था, these smiths, they were supposed to wear nothing but a long shirt, सिर्फ वो एक लंबा सा कुर्ता पहन के रखते थे, and a pair of wooden shoes, और wooden shoes पहन के रखते थे। then close it, बंद कर दो। All the time there were many sounds to be heard in the forge. पूरे टाइम जो वो फौज थी, जो फर्नेस थी, उसमें बहुत अलग बहुत तरह की आवाजें सुनाई देती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड बर्निंग कोल क्रैक्ड। जो बिग बेलोज थे, बेलोज मींस बेलो इज एन एपरेटस, ये एक व्हाट यू कॉल इट, नॉट मशीन, इट्स एन एपरेटस फॉर ब्लोइंग एयर इनटू फायर। हवा में सॉरी आग में जब आप एयर ब्लो करोगे सो दैट इट इंक्रीजेस, है ना, सो दैट इज कॉल्ड बिलोइंग, तो उसकी आवाज आती थी। एंड एज सुन एज द फायर वुड इंक्रीज, ऑफ कोर्स कोल क्रैकिंग, इस तरह की बहुत सारी आवाजें सुनाई देती थी। द फायर बॉय शोवर्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस। द फायर बॉय शोवर्ड चारकोल, शोवर्ड मींस शोवल, यू अंडरस्टैंड, शोव करना, फावड़े से उठाना चारकोल को, और जो मॉ इज द माउथ, जो माउथ होता था उसका ऑफ द फर्नेस, जो भट्टी थी उसका जो माउथ था, वो चाकोल उसमें फावड़े से डालता था विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, वो भी बहुत सारी आवाज करके, क्लैटरिंग इज अनदर साउंड। ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी लाइक दीज साउंड्स, क्लैटर, क्रैक, बिलो, ग्रोन्ड, which figure of speech is it that is used here? Which figure of speech? मैम ओनोमेटोपिया। Correct, that is मैम onomatopoeia. ओनोमेटोपिया। Yeah, onomatopoeia. Onomatopoeia is when it's a literary device where sounds are introduced, right? This way. These words, they do not have any literal meaning. इनका कोई literal meaning नहीं होता है. They are just to give us the idea, the hint about some sort of sound. Okay. So, and you see one more device that you will find here in this story, and as you can see the description right now, this is imagery. Imagery. And you see in imagery we have various imageries. Visual imagery जिसको हम देख कर imagine कर सकते हैं. Then you have olfactory, you have auditory जिसको हम सुनकर. So as you can see, many sounds have been told over here. Visual imagery has been used here. Olfactory is for feeling your sense. So I have a video, I'll send you the link. These imageries, you will be able to understand them in a better way, right? Outside roar is again onomatopoeia, huh? Outside roared the waterfall, और उसके बाहर जो है झरने की आवाज आती थी, and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof.
और बाहर झरने की तेज आवाज होती थी, और नॉर्थ की तरफ से तेज हवा ईंटों की बनी छत पर, ऐसे लगता था कि इट इज विपिंग, विपिंग मतलब कोड़े मारना जिसको बोलते हैं, कोड़े की तरह मारती थी। क्यों? क्योंकि जब बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है, तो द काइंड ऑफ साउंड दैट इट यूज्ड टू क्रिएट ओवर देयर। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. शायद इतनी सारी आवाज में ही ऐसा हुआ होगा कि जो ब्लैकस्मिथ था, जो लोहार था, उसको ये पता ही नहीं चला कि कब एक आदमी ने दरवाजा खोला एंड एंटर द फॉर्ज, और उस भट्टी में मतलब वो एंटर हो गया, until he stood close up to the furnace, जब तक कि वो बिल्कुल उसके पास आकर नहीं खड़ा हो गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire. Now, you see, as the blacksmith did not notice, but at the same time, it wasn't very strange for him. उसके लिए कुछ भी अलग नहीं था, कुछ unusual नहीं था। क्यों? क्योंकि जो पुअर वैगाबॉन्ड्स होते थे, बेचारे जो गरीब आवारा लोग, जिनके पास कोई रहने की जगह नहीं है, विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, जिनके पास रात को कहीं छत नहीं है, कोई जगह नहीं है सोने के लिए, दे यूज टू गेट अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज। वो इस फॉर्ज से अट्रैक्ट हो जाते थे बाय द ग्लो ऑफ लाइट, क्योंकि वहां पर लाइट चमकती थी, विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन। सूटी मीन स्मोकी, स्मोक से भरे हुए जो पेन्स थे, विंडो पेन्स, जो उनकी खिड़की के शीशे थे, वो हमेशा स्मोक से भरे रहते थे, बिकॉज इट वॉज अ फर्नेस इनसाइड। एंड यू नो, एंड थ्रू दोज पेन्स, थ्रू दोज सूटी पेन्स, द लाइट यूज टू बी आउट, है ना। तो किसी को भी फर्नेस की लाइट दिखाई देगी, तो इस तरह से लोग आ जाते थे। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ फायर, और वैसे भी अपने आप को गर्म करने के लिए, बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड। तो ये जो फौज साइड वॉज अ वेरी गुड प्लेस फॉर सच पुअर वेगाबॉन्ड्स टू स्पेंड देयर नाइट ओवर देयर, है ना। वहां पर रात गुजारने के लिए अक्सर इस तरह के लोग आते रहते थे। The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. Who is an intruder? Who enters a place without permission. Intruder is someone who enters a place without permission. घुसपैठिया बोलते हैं ना जिसको, तो वो होता है इंट्रूडर, जो किसी जगह पर बिना किसी परमिशन के घुस जाता है। तो जैसे ही ब्लैकस्मिथ ने उसको देखा, बड़ा कैजुअली देखा एट द इंट्रूडर, बिकॉज इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर हिम। पीपल यूज टू कम लाइक दैट, ओवर देयर। He looked the way people of his type usually did. उसने उसी तरह से देखा जैसे कि इस तरह के लोग करते थे, with a long beard, लंबी सी दाढ़ी, dirty, गंदे, ragged, फटे हुए कपड़े, and with a bunch of rat traps dangling on his chest, और कुछ rat traps का गुच्छा जो कि उसके chest पर टंगा हुआ था। तो usually वो भी ऐसा ही दिख रहा था, the way these poor vagabonds used to look. He asked permission to stay. उसने permission ली कि क्या मैं यहाँ पर रुक जाऊं, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. तो उसने परमिशन ली और उसने भी नॉड कर दिया, नॉड मतलब यस कर दिया, सिर हिला दिया, विद अ हॉटी, हॉटी मींस एरोगेंट, एरोगेंट कंसेंट, कंसेंट इज द परमिशन, बड़ी ही एरोगेंट परमिशन देते हुए, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, उसने उसे एक शब्द तक भी कहने की जरूरत नहीं समझी, और उसको बस सिर हिला दिया कि ठीक है रुक जाओ। The tramp did not say anything. Even the tramp did not say anything. Tramp again means vagabond only. हाँ, vagabond, आवारा जिसको बोलते हैं, who doesn't have a place to live and very poor. उसने भी कुछ नहीं कहा। He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. क्योंकि वो यहाँ कोई बातचीत करने नहीं आया था, सिर्फ वो अपने आप को वार्म करना चाहता था, and he wanted to sleep, और सोना चाहता था। In those days, the Ramsjo Iron Mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों में जो रामजो आयरन मिल था, वो एक उसका मालिक एक बहुत ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था। प्रोमिनेंट मींस इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट इज इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट आयरन मास्टर था, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, जिसका बहुत बड़ा एम्बिशन था कि अच्छा लोहा मार्केट में शिप किया जाए। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. वो हमेशा दिन रात देखता था कि काम अच्छे से हो रहा है, और जितना काम है पॉसिबल है उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसीलिए उस दिन भी वो अचानक से अपने नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, जो रात को वो इंस्पेक्शन के लिए राउंड लिया करता था, अचानक से वो उस इंस्पेक्शन राउंड पर आ गया। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. Naturally, अब वो जैसे ही आया, सबसे पहले उसको क्या दिखाई दिया? सबसे पहले उसको लंबा सा रैगमफिन, रैगमफिन अगेन अ रैग्ड पर्सन, रैग, रैगमफिन, रैग वर्ड क्यों यूज हुआ है? बिकॉज ही इज रैग्ड, जिसने चिथड़े पहने हुए थे। हाँ, रैगमफिन
very disreputable person. Muffin, why? Because जिसकी कोई इज्जत ना हो, that person is called muffin. And ragamuffin because ragged muffin, right? तो वो लंबा सा, सबसे पहले उसको वो आदमी दिखाई दिया जो कि बड़े आराम से बिल्कुल भट्टी के पास में सोया हुआ था, और इतना पास था कि जो उसके गीले चिथड़े थे ना, जो रैग्स उसने पहने हुए थे, उसमें से धुआं उठ रहा था. The iron master did not follow the example of the blacksmith. लेकिन उसने उन लोहारों का एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया, who had hardly deigned to look at the stranger, जिन्होंने की इतनी भी जरूरत नहीं की कि वो उसकी तरफ देख भी लें. ऐसा नहीं था कि जिस तरह से ब्लैक स्मिथ ने उनको उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था. दे डिड नॉट इवन टॉक टू हिम, दे डिड नॉट इवन लुक एट हिम. ही डिड नॉट डू लाइक दैट, ही डिड नॉट फॉलो दैट एग्जाम्पल. उसने ऐसा नहीं किया. ऑलराइट. ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास गया, लुक्ड हिम वेरी केयरफुली, ध्यान से उसको देखा. देन tore off his slouch hat to get a better view of his face. और फिर जो उसका स्लाउच मीन सॉफ्ट, जो उसका एक सॉफ्ट हैट था जो शायद उसने अपने फेस पे रखा हुआ होगा सोने के लिए, उसको उसने हटाया टू गेट अ बेटर लुक, उसको ध्यान से देखने के लिए. बट ऑफ कोर्स इट इज यू, Nils Olof, he said. How you do look? अब जैसे ही उसने वो हटाया ना, तो somehow he recognized him, not recognizing exactly, but misrecognizing in a way. He misunderstood him to be somebody. उसने जैसे ही उसका हैट हटाया, उसको लगा कि ये कोई है, मतलब, और उसने बोला, अरे ये तो तुम हो, निल्स ओलोफ. कैसे लग रहे हो तुम, निल्स ओलोफ. उसने नाम भी बताया. The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramsjo and did not even know what his name was. अब ये जो rat trap seller था, इसने ना तो ये आज से पहले उस Iron Master से मिला था और ना ही उसे अपना नाम पता था. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन उसको अचानक से क्या लगा कि अगर ये मुझे कोई सोच रहा है कि मैं उसके कोई जान पहचान वाला हूँ, तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे दे. Suddenly उसके दिमाग में एक थॉट आया. Therefore, he did not want to undeceive him at all. तो इसलिए वो उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था. मतलब वो आयरन मास्टर तो धोखा खा चुका था ना, लेकिन वो उसको ठीक नहीं करना चाहता था. उसको लगा ठीक है, ये मुझे कुछ गलत समझ रहा है, ये मुझे अपना कोई जानने वाला समझ रहा है, तो समझने दो, हो सकता है इसमें मेरा कुछ फायदा हो जाए, ये मुझे कुछ पैसे ही दे दे, कुछ क्रोनर दे दे. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. हाँ, भगवान को पता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है. Things have gone downhill with me. Because जब उसने सोचा कि ये मुझे कोई गलत ही समझ रहा है, तो उसने सोचा हाँ ठीक है, होने दो. वो कहता है कि yes, only God knows that things have gone downhill with me. Means had been very bad with me. Gone downhill means had been very bad with me. भगवान को ही पता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है. You should have not resigned from the regiment, said the Iron Master. तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. मतलब कि वो उसको कोई ऐसा सोच रहा है who had been a soldier in the army, जो शायद आर्मी में सोल्जर हुआ है ना, तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था. That was the mistake, वो तुम्हारी गलती थी. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. अगर मैं उस समय तक सर्विस में होता, तो मैं ऐसा कभी ना होने देता. Well, now of course you will come home with me. लेकिन अब तुम मेरे साथ घर चलोगे. तो एक्चुअली दिस आयरन मास्टर, ही मस्ट हैव बीन इन द आर्मी बिफोरहैंड. वो पहले जो है एक सोल्जर रहा होगा, और ये उसका कोई फ्रेंड था, नील्स ओलोफ, वहां उसके साथ सोल्जर था. अब नाउ ही सॉ हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इसने तो कब का आर्मी छोड़ दिया, उससे पहले ही छोड़ दिया, और उसके बाद तो उसने उसको काफी टाइम बाद देखा, उसको पहचान नहीं पाया, और उसने सोचा शायद ये मेरा वही दोस्त है. जब उसने कहा कि मेरा मेरा बड़ा बुरा समय था, तो उसको लगा, उसने कहा अरे तुम्हें आर्मी नहीं छोड़नी चाहिए थी, मैं होता तो तुम्हें ऐसा ना करने देता. बट नाउ यू हैव टू कम होम विद मी. अब लेकिन तुम मेरे साथ घर चलोगे. To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. लेकिन manor house जाना, manor house means a large house, estate जिसे बोलते हैं, with a lot of land and small buildings around it. जो एक manor होता है, manor is like an estate. एक घर होता है, जैसे for example एक simple घर जो हमारा मकान होता है. But manor is where you have a garden, where you have servant quarters, where you have different other buildings also, that is called a manor. आप लेकिन मैनर हाउस जाना एंड टू बी रिसीव्ड बाय ओनर, और उसके ओनर के द्वारा ऐसे रिसीव किया जाना जैसे कि वो उसका कोई पुराना कॉमरेड मींस कंपेनियन, उसका कोई पुराना रेजिमेंटल कंपेनियन हो. लेकिन ये बात इस ट्रैम्प को पसंद नहीं आई. इस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ. नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट. नहीं नहीं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता. ही सेड, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. अलार्म्ड मींस शॉक. बड़ा शॉक होकर उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता. He thought of the 30 kroner, क्योंकि उसको तो वो 30 kroner याद आ रहे थे.
To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. मैनर हाउस में जाना इसका मतलब कि अपने आप को शेर की गुफा में, शेर की जो डेन होती है उसमें जानबूझकर, वॉलेंटरीली मींस डेलिबरेटली, अपनी इच्छा से अपने आप को शेर की गुफा में धक्का देने के बराबर होगा. He only wanted a chance to sleep here in the फौज. वो सिर्फ चाहता था कि उसको मौका मिल जाए कि वो यहाँ पर फौज में सो जाए, and then sneak away as inconspicuously as possible. और फिर यहाँ से चुपचाप से निकल ले. Sneak away means to slip away, steal away. चुपचाप से यहाँ से निकल ले. As inconspicuously means unnoticed as possible, without being unnoticed, बिना किसी के पहचाने हुए, कि कोई उसे पहचान ना पाए और वो चुपचाप से यहाँ से निकल जाए. Alright. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. लेकिन Iron Master को क्या लगा कि शायद इसने जो इतने खराब कपड़े पहने हुए हैं उसकी वजह से ये embarrassed feel कर रहा है. Please don't think that I have such a fine home. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. ऐसा मत सोचो कि मेरा कोई इतना बढ़िया घर है कि तुम वहां पे अपने आप को दिखा नहीं सकते. He said, Elizabeth is dead. Elizabeth मर चुकी है, as you may already have heard, जैसा कि शायद तुमने सुना होगा. My boys are abroad, मेरे बेटे बाहर हैं. And there is no one at home except my oldest daughter and myself. और घर पे कोई भी नहीं है सिवाय मेरे और मेरी बड़ी बेटी के. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. हम तो ये बात कर ही रहे थे कि कितनी खराब बात है कि इस बार क्रिसमस पे हमारी कोई कंपनी नहीं है. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो अब तुम चलो, हमारे साथ चलो, मेरे साथ चलो और let's have Christmas food together. You know, it is a way of saying जब हम किसी को खुश होकर कहते हैं कि help me getting the food disappear a little faster, कि जल्दी से खाना खत्म कर सके, so that we have so when we are more people we are able to finish it faster, है ना. So it is just a way of inviting somebody for lunch or dinner. तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हम तो सोच ही रहे थे कि देखो इस क्रिसमस हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट नहीं है और तो फिर तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा. But the stranger said no. लेकिन stranger ने मना कर दिया, and no and again no, and the Iron Master saw that he must give in. लेकिन जो stranger था वो मना करता रहा और फिर Iron Master को लगा कि कोई फायदा नहीं है इसको कहने का. It looks as though Captain Von Stale preferred to stay with you tonight, Sturgeon Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. और फिर उसने जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था, जो बड़ा लुहार था, उसको बोला कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेल जो है आज तुम्हारे ही साथ रहना चाहते हैं यहाँ पर. और ये कहकर वो वहां से चल पड़ा. ऑलराइट. सो गिवन मीन्स डिफीटेड, जैसे कि उसने हार मान ली थी, है ना. तो कोई फायदा नहीं हुआ, उसने बहुत उसको बोला लेकिन वो चला नहीं. बट ही laughed to himself as he went away. लेकिन वो जब वापस जा रहा था तो हंस रहा था. एंड द ब्लैकस्मिथ who knew him, और जो लोहार था जो उसको अच्छी तरह से जानता था, understood very well that he had not said his last word. और वो ये समझ चुका था कि इसने अभी अपनी बात खत्म नहीं की है. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उन्होंने जो एक carriage wheels, कैरेज, यू अंडरस्टैंड, इट्स अ काइंड ऑफ नॉट कार, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है कैरेज होती है, इसी तरह से हाथ वाली जो गाड़ी होती है दैट इज कॉल्ड कैरेज. तो उसके पहियों की आवाज अचानक से फौज के बाहर सुनाई देने लगी. एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और तब वहां पर एक नया गेस्ट आया. बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर. लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था. He had sent his daughter. उसने अपनी बेटी को भेज दिया था, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. ये होप करते हुए, ये उम्मीद करते हुए कि शायद इसके पास किसी को परसुएड करने की, परसुएशन मींस कन्विंसिंग समबडी, किसी को कन्विंस करने की, परसुएड करने की, इंसिस्ट करने की ज्यादा ताकत है बजाय उसके. शी एंटर्ड द फौज, वो वहां फौज में घुसी. फॉलोइंग बाय अ वैले, वैले उसको फॉलो कर रहा था. कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, जिसने अपने हाथ पर एक बड़ा सा फर कोट लिया हुआ था. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो बहुत खूबसूरत नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन बहुत ही मॉडेस्ट थी और थोड़ी शर्मीली लग रही थी. इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. फौज में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि शाम को था. ओहो, वेट. Yeah, so it had been earlier in the evening. फौज में सब कुछ वैसा ही था जैसे शाम को था. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench. जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था और जो उसका हेल्पर था वो अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और आयरन चारकोल अभी भी भट्टी में चमक रहे थे. The uh, the stranger had stretched himself out on the floor.
जो स्ट्रेंजर था वो जमीन पर लेटा हुआ था एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड। थोड़ा सा कच्चे लोहे का जो पीस था वो उसने अपने सिर के नीचे लगाया हुआ था एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आईज, और अपने हैट को उसने आंखों पर कर रखा था। As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उस लड़की ने उसको देखा, she went up and lifted his hat. वो गई और उसका हैट हटा दिया। The man was evidently used to sleeping with one eye open. ऐसा बिल्कुल evidently ऐसा लग रहा था कि वो शायद एक आंख खोलकर सोता था। He jumped up abruptly. एकदम से वो खड़ा हो गया and seemed to be quite frightened, और बड़ा डरा हुआ लग रहा था। My name is Edla Wilmanson, said the young girl. The young girl introduced herself. उसने बोला कि मेरा नाम एडला है। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. मेरे पापा ने मुझे आकर बोला घर पे कि आप यहाँ पर सोना चाहते हो रात को। And then I asked permission to come and bring you home to us. और फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं यहाँ आऊँ और आपको घर लेकर चलूँ। I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. मुझे बहुत दुख है कि आपका इतना बुरा समय चल रहा है। She looked at him compassionately. उसने बड़ी दया के साथ उसको देखा with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. और फिर उसको लगा कि जो आदमी है डरा हुआ है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail. या तो इसने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागा हुआ है। She thought, उसने ऐसा सोचा and added quickly, और अचानक से बोली, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो कैप्टन, जिस तरह से तुम हमारे घर आओगे ना इसी तरह से यू कैन लीव अस एज फ्रीली एज यू कैन। जितना जल्दी तुम हमें छोड़कर जाना चाहो तुम जा सकते हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। सिर्फ क्रिसमस ईव के लिए हमारे साथ रुक जाओ। She said it in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने वो इतने फ्रेंडली तरीके से ये बात कही कि शायद उसको उस पर कुछ भरोसा आ गया। It would never have occurred to me that you would bother me yourself, miss, he said. I will come at once. मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि तुम मेरे लिए इतना बॉदर करोगी। ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। He accepted the fur coat. वो fur coat उसने ले लिया, which the valet handed him with a deep bow. उसने बड़ा झुककर उसको बाव करके वो fur coat दिया। Threw it over his rags. उस कोट को उसने अपने उन rags के ऊपर पहन लिया and followed the young lady out to the carriage. और उस young lady के पीछे पीछे carriage तक चलने लगा without granting the astonished blacksmiths so much as a glance. और ब्लैकस्मिथ को सिर्फ एक झलक ही उसने दिखाई अपनी, मतलब ही डिड नॉट ग्रांट देम टू लुक एट हिम क्लोजली, कि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई उसको पहचाने ना, तो उसने ब्लैक स्मिथ को ये मौका ही नहीं दिया कि वो उसको बहुत ध्यान से देख पाए। दे कुड ओनली हैव अ ग्लैंस एट हिम, सिर्फ एक ग्लैंस, वो सिर्फ एक छोटा सा लुक उसका देख पाए। बट व्हाइल ही वाज राइडिंग अप द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स। लेकिन अब जब वो मैनर हाउस जा रहा था तो उसको बहुत ही इविल फोरबोर्डिंग्स, फोरबोर्डिंग्स यू अंडरस्टैंड, ओमेन्स। ओमेन्स आर बैड इंट्यूशंस, रॉन्ग इंट्यूशंस, है ना, जब हमें रॉन्ग इंट्यूशंस होते हैं ना किसी चीज के, तो अब जब वो जा रहा था तो उसको वही रॉन्ग इंट्यूशंस हो रहे थे कि कुछ गलत होने वाला है। Why the devil did I take that fellow's money? पता नहीं मैंने उस आदमी के पैसे क्यों लिए? He thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. और अब देखो मैं खुद फंस चुका हूँ और मैं कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। So the peddler actually somehow, though he agreed to the invitation of this girl, but after sitting in the carriage when he left from there, he wasn't liking the idea. He was regretting over it. He thought that now he has been caught up in that trap and he would never be able to get out of it. The next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. Comrade means companion. Running across means जिसे कहते हैं ना टकराना, किसी से अचानक से मिल जाना. That is called run across. So next day was Christmas Eve, and the Iron Master, he came to the dining room for breakfast, and he was very happy and satisfied with the fact that he has run across his friend, his old regimental friend, and that too on Christmas, so that he can serve as a guest with them. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter. Now, you see, he was being too kind. वो बहुत kind था, and he told the daughter that first of all, we must see that he gets little flesh on his bones. Means otherwise, that fellow was very weak. तो वो कहता है कि हमें पहले ये कोशिश करनी है कि वो थोड़ा मोटा हो जाए. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि बजाय ये rat trap सेल करने के, करते हुए घूमते रहने के, वो कुछ और काम करे, right? It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Even the daughter was sympathizing with the man, and she said it is very strange. Queer means strange, that things have gone downhill with him
as badly as that. बहुत दुख की बात है कि चीजें उसके साथ इतनी खराब हो गई हैं. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. कल रात जब मैंने उसे देखा तो मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई एक भी चीज ऐसी है इस इंसान के बारे में जो ये शो कर सके कि वो एक पढ़ा लिखा आदमी है. You must have patience, my little girl, said the father. Father ने कहा कि तुम थोड़ा धैर्य रखो. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. जब वो साफ सुथरा होगा, नए कपड़े, प्रॉपर कपड़े पहनेगा, तुम्हें कोई और ही दिखेगा. Last night he was naturally embarrassed. रात को वो बहुत घबराया हुआ था. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. ये जो आवाराओं वाले जो manners हैं, ये भी गायब हो जाएंगे, ये भी गिर जाएंगे once he टेक ऑफ दोज ट्रैम्प क्लोथ्स. जो उसने आवारा वाले फटे कपड़े पहने हुए हैं, एक बार वो हट जाएं तो जो मैनर्स हैं वो भी हट जाएंगे. देन ही वुड लुक लाइक एन एजुकेटेड पर्सन. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. जैसे ही उसने ये कहा दरवाजा खुला और जो वो स्ट्रेंजर था वो अंदर आ गया. यस, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. वाकई में अब बिल्कुल साफ सुथरा वेल ड्रेस्ड था. द वेले हैड bathed him, cut his hair and shaved him. जो सर्वेंट था वेले, उसने उसको नहलाया, उसके बाल काटे, उसकी शेविंग भी की. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. और उसको फिर एक नया अच्छा सूट पहनाया, मतलब अच्छा दिखने वाला सूट पहनाया जो कि आयरन मास्टर का था. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. फटे हुए जूते नहीं थे, प्रॉपर शूज उसने पहने हुए थे, व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, स्टार्च कॉलर था जिसका. But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. लेकिन हालांकि जो गेस्ट था वो बड़ा अच्छा दिख रहा था, बहुत वेल ग्रूम्ड था, लेकिन आयरन मास्टर को उसको देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. ये बिल्कुल साफ था. जैसे ही उसने आयरन मास्टर ने उसकी तरफ देखा, he was really angry. He suddenly had puckered, you understand, tightly gathered. जैसे wrinkles जो होते हैं, you know, when you tightly gather your brow, then you get wrinkles. तो भौएं चढ़ा के देखना जिसको बोलते हैं. तो उसने उसी तरह से उसको देखा. और ये समझना बिल्कुल आसान था कि कल रात को जब उसने देखा था तो जो फर्नेस से रिफ्लेक्शन आ रहा था उसकी वजह से उसको उससे गलती हो गई. लेकिन आज ब्रॉड डे लाइट में अब कोई गलती करना इम्पॉसिबल था. उसको पता चल गया था कि ये वो इंसान है ही नहीं जो मैं सोच रहा था. What does this mean? He thundered. वो बहुत गुस्से में चिल्लाकर बोला. What does this mean? इसका क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. स्ट्रेंजर ने उस टाइम कुछ भी डिसिमुलेट मतलब कंसील, डिस्गाइज, हाइड, कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की. He saw at once that a splendor had come to an end. उसको एकदम से ये पता चल गया था कि ये जो स्प्लेंडर है, ये ग्रैंडर जो है, जितना उसको ये मान सम्मान, गुडविल, ये जो कुछ भी मिल रही थी, नाउ इट हैड कम टू एन एंड. अब ये खत्म हो चुका था. इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड. ये मेरी गलती नहीं है सर. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर. मैंने कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं की सिर्फ पुअर ट्रेडर के अलावा. एंड आई प्लेडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज. और मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट किया आपको, मैंने तो आपसे I begged you, I pleaded you, I made earnest request that I should be allowed to stay in the forge. कि मुझे वहीं भट्टी में रहने दिया जाए. But no harm has been done. लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं हुई है. At worst, I can put on my rags again and go away. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा ये होगा कि मैं अपने जो फटे कपड़े हैं, जो रैग्स हैं, उनको दोबारा पहन लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा. Well, said the iron master, hesitating a little. Iron master ने थोड़ा सा हिचकते हुए कहा, अच्छा, it was not quite honest. लेकिन वो it was not quite honest either. लेकिन उसमें कुछ सच्चाई भी नहीं थी, ईमानदारी भी नहीं थी. You must admit that I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. हाँ, ये तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि मुझे बहुत ताजुब नहीं होना चाहिए इस बात के लिए. If the sheriff means sheriff is the policeman. ओके, ऑफिसर जो यूएस है एक्चुअली, वहां पर जो ऑफिसर लॉयर होता है ना, काइंड ऑफ लॉ कीपर्स, दे आर कॉल्ड शेरिफ्स. तो ऑफिसर इन द लॉ मींस काइंड ऑफ पुलिस है ना. तो कहता है कि मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि शायद पुलिस इस मामले में कुछ करना चाहे. द ट्रैम टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट. उसको जो ट्रैम था मींस द स्ट्रेंजर, उसको एकदम से पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम आगे आया और टेबल पे फिस्ट से, अपनी मुट्ठी से एकदम से उसने जोर से मारा. Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. अब मैं आपको बताऊंगा कैसे होती हैं चीजें.
This whole world is nothing but a big rat trap. ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, बड़ा सा चूहादान है. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rings and big bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. ये जितनी भी इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो भी अच्छी चीजें ये दुनिया ऑफर करती है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ चीज के टुकड़े हैं या पोर्क के टुकड़े हैं, जो कि जानबूझकर दिए जाते हैं जिससे कि बेचारे गरीब लोग जो हैं वो उसमें फंस जाएं. And if the sheriff comes, so, suddenly something happened and he started telling that ideology which he used to feel, which he used to believe. तो उसने कहा कि ये गरीब लोगों को फंसाने के लिए इस दुनिया में ये सब कुछ दिया जाता है. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. और अगर यहाँ पर आज शेरिफ आता है, पुलिस आती है और मुझे लॉक कर देती है, तो आप भी याद रखना मिस्टर आयन मास्टर, एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि जब आप भी किसी बिग पीस ऑफ पॉक के पीछे यानी किसी बेट के पीछे जाना चाहोगे और आप भी इस ट्रैप में फंस जाओगे. द आयन मास्टर बिगैन टू लाफ. उसने हंसना शुरू कर दिया. दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो. काफी बुरी तरह नहीं कहा तुमने. परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव. शायद हमें शेरिफ को छोड़ देना चाहिए क्रिसमस ईव पर. बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन. लेकिन अब यहाँ से तुरंत निकल जाओ जितना जल्दी हो सके. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड. लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोल रहा था, जो डॉटर थी उसने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे. मुझे लगता है कि शायद आज उसे हमारे साथ रहना चाहिए. आई डोंट वांट हिम टू गो. मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए. एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर. और वो गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया. What in the world are you doing? said the father. फादर ने पूछा, क्या कर रही हो ये तुम? The daughter stood there quite embarrassed. डॉटर जो थी घबराई हुई वहां खड़ी हुई थी. And hardly knew what to answer. उसको पता ही नहीं था क्या जवाब दो. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. उस दिन सुबह वो इतनी खुश थी और उसको बहुत अच्छा लग रहा था ये सोचकर कि किस तरह से ये जो क्रिसमस होगा ये कितना होम लाइक होगा, कितना क्रिसमसी होगा, जब वो एक बेचारे भूखे इंसान के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएगी. She could not get away from the idea all at once. और उस आइडिया को वो एकदम से नहीं छोड़ सकती थी. And that was why she had interceded with the vagabond. और यही एक कारण था कि उसने इस vagabond के साथ intercede किया. Intercede means intervene on behalf of him. Intervene, you understand? Interfere on behalf of somebody. Okay, तो इसीलिए उसने जो है vagabond की तरफदारी की थी. I am thinking of this stranger here, said the young girl. उस young girl ने कहा कि मैं तो इस बेचारे stranger के बारे में सोच रही हूँ. He walks and walks the whole year along. पूरे साल ये चलता रहता है and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. और शायद इस पूरी दुनिया में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर उसका स्वागत किया जाता हो या फिर जहां पर उसको घर जैसा महसूस कराया जाता हो. Wherever he turns, he is chased away. जिधर को भी मुड़ता है लोग उसको भगा देते हैं. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. उसको हमेशा अरेस्ट होने से, पूछताछ से डर लगता है. I should like to have him enjoy a day of peace with us here. मैं चाहती हूँ कि सिर्फ एक दिन वो शांति से हमारे साथ बिता ले. Just one in the whole year. पूरे साल में सिर्फ एक दिन. The Iron Master mumbled something in his beard. उसने कुछ बुदबुदाया अपने मुंह में. He could not bring himself to oppose her. लेकिन वो उसको oppose नहीं कर पाया. It was all a mistake, of course, she continued. फिर उसने आगे कहा, means the daughter continued, कि बिल्कुल ये एक गलती थी. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें उस इंसान को बिल्कुल नहीं भगाना चाहिए जिसको खुद हमने यहाँ पर आने के लिए कहा और हमने कहा कि हम उसको क्रिसमस चीयर देंगे, क्रिसमस जॉय देंगे. You do preach worse than a parson, said the Iron Master. तुम एक पासन मतलब जो प्रीस्ट होते हैं ना उनसे काफी बुरा प्रवचन देती हो. I only hope you won't have to regret this. मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बाद में इसके लिए रिग्रेट ना करना पड़े, पछताना ना पड़े. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. जो young girl थी उसने उस अजनबी का हाथ पकड़ा और उसको टेबल तक ले गई. Now sit down and eat. अब बैठो और खाओ, she said, for she could see that her father had given in. क्योंकि उसने देखा कि उसके पापा जो हैं वो उन्होंने गिव इन कर दिया था, मतलब उसकी बात मान गए थे. तो वो उसको ले गई और कहा कि बैठो और खाओ. The man with the rat trap said not a word. जो वो इंसान था, rat trap seller जो था, he did not say anything, not even a single word. उसने कुछ नहीं कहा. He only sat down and helped himself to the food. वो सिर्फ बैठा और खाना खाने लगा. Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him.
खाते खाते बार बार वो उस लड़की की तरफ देख रहा था जिसने उसके बिहाफ पर उसकी तरफदारी की थी। Why had she done it? क्यों किया उसने ऐसा? What could the crazy idea be? इसके पीछे क्या हो सकता है? After that, Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had. और उसके बाद जो रामसजो की जो क्रिसमस ईव थी वो खत्म हो गई जैसे होती है। The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. लेकिन वो जो स्ट्रेंजर था उसने कोई परेशानी नहीं खड़ी की क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं सिवाय सोने के। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. पूरी दोपहर से मतलब सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से पहले यू नो फोरनून, आफ्टरनून होता है दोपहर से शाम तक, तो सुबह से लेके दोपहर तक वो सोफे पर लेटा रहा गेस्ट रूम में और सोता रहा। At noon, they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. दोपहर को उसको उठाया गया जिससे कि वो अपना शेयर क्रिसमस फेयर का खा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, फिर सो गया खाने के बाद। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सालों से वो इतनी शांति से और इतनी सेफली, इतनी सिक्योरिटी के साथ सो ही नहीं पाया था। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again. शाम को जब उन्होंने क्रिसमस ट्री को लाइट किया तो फिर उन्होंने उसे उठाया एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम। थोड़ी देर वो ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए जैसे कि शायद जो कैंडल्स की लाइट है वो उसको परेशान कर रही है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। उसके बाद वो फिर गायब हो गया। 2 hours later he was aroused once more. फिर 2 घंटे बाद उसको जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. अब उसको डाइनिंग रूम जाना था और क्रिसमस फिश एंड पॉरेज खाना था। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. अब जैसे ही वो टेबल से उठे तो हर कोई जो है एक दूसरे को जाकर प्रेजेंट देने लगा, थैंक यू करने लगा, गुड नाइट करने लगा। और जैसे ही वो यंग गर्ल के पास आया तो उसने उसको बताया कि उसके फादर चाहते हैं कि जो सूट उसने पहना हुआ है उसको वो रख सकता है एज क्रिसमस प्रेजेंट, उसको वापस करने की जरूरत नहीं है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन। और अगर वो चाहता है अगली क्रिसमस ईव को भी इसी तरह से सेलिब्रेट करना जिसमें कि वो शांति से सो सके, जिससे कि कुछ भी बुरा उसके साथ ना हो, तो वो दोबारा आ सकता है। द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। रैट ट्रैप सेलर ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। वो सिर्फ उस लड़की की तरफ बहुत ही ताज्जुब के साथ देखता रहा। The next morning, the ironmaster and his daughter got up in a good season to go to the early Christmas service. अगली सुबह ironmaster और उनकी बेटी बहुत जल्दी उठ गए क्योंकि उनको चर्च जाना था अर्ली क्रिसमस सर्विस के लिए। Their guest was still asleep. उनका गेस्ट तो अभी भी सोया हुआ था and they did not disturb him. तो उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। When at about 10 o'clock they drove back from the church. 10 बजे जब वो चर्च से वापस आए, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. जब वो वापस आए तो वो लड़की बहुत ही दुखी थी। Dejected means extremely sad. बहुत दुखी थी और उसने अपना सिर लटकाया हुआ था। At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. क्योंकि वहां चर्च में उनको ये खबर मिल गई थी कि एक कोई जो ओल्ड क्रोफ्टर था आयरन वर्क्स का, उसको लूट लिया है किसी ने। और किसने? एक इंसान जो रैट ट्रैप सेल करता है। यस, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, सेड द फादर। फादर ने कहा ये वही बहुत अच्छा इंसान है जिसको तुमने घर में आने दिया। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। मुझे तो यही ताज्जुब है कि पता नहीं अब कितने सिल्वर स्पून्स बचे होंगे हमारे कबर्ड में। The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. जो वैगन था वो अभी फ्रंट, वैगन मीन्स जो उनका कैरेज था जिसमें वो बैठकर आए थे, वो अभी मुश्किल से रुका ही था दरवाजे पर कि तुरंत आयरन मास्टर ने वेले से पूछा, सर्वेंट से पूछा कि वो स्ट्रेंजर अभी भी वहां है। He added that he had heard at church that the man was a thief. और साथ में उसने ये भी बताया कि मैंने चर्च में सुना है कि वो आदमी तो चोर है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. लेकिन वेले ने कहा कि वो इंसान तो जा चुका है और उसने अपने साथ तो कुछ भी नहीं ले गया है। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present.
और बल्कि उसके ऑपोजिट वो तो एक खुद एक पैकेट देकर गया है जो कि उसने कहा है कि मिस विल्किंसन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज इज क्रिसमस प्रेजेंट। द यंग गर्ल ओपनड द पैकेज, यंग गर्ल ने वो खोला, which was so badly done up that the contents came into view at once. इतनी बुरी तरह से पैक किया था उसको कि एकदम से दिख गया उसमें क्या था। She gave a little cry of joy. वो एकदम से खुशी के मारे चिल्लाई। She found a small rat trap. उसको एक छोटा सा rat trap मिला, and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. और उस rat trap में वही तीन जो हैं, जो 30 kroners थे, वही 10 kroner 3 notes जो थे, वो लगे हुए थे। But that was not all. लेकिन वो ही नहीं था। In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. उस rat trap में एक लेटर भी लिखा हुआ था, बड़ी 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 खराब सी हैंडराइटिंग में। Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return. क्योंकि तुम पूरा दिन मेरे साथ इतनी अच्छी रही हो जैसे कि मैं वाकई में कैप्टन हूँ, तो मैं भी तुमसे अच्छा रहना चाहता हूँ। As if I was a real captain, जैसे वाकई में मैं कोई कैप्टन हूँ। For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस क्रिसमस सीजन में तुम्हें एम्बेरसमेंट हो मुझे एक चोर समझकर। But you can give back the money to the old man on the roadside. लेकिन तुम ये पैसा उस बूढ़े आदमी को दे सकती हो वापस, who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. जिसने कि वो मनी पाउच अपनी दीवार पर ऐसे टांगा हुआ है जैसे कि वो मेरे जैसे जो गरीब बेचारे भटकने वाले लोग हैं उनके लिए बेट का काम करता है। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap. ये जो rat trap है ये एक क्रिसमस प्रेजेंट है एक उस चूहे की तरफ से जो कि शायद इस दुनिया के चूहेदान में पकड़ा गया होता if he had not been raised to captain, अगर उसको कैप्टन के जितना ऊपर ना उठाया गया होता, because in that way he got power to clear himself. क्योंकि जब उसको कैप्टन की तरह ट्रीट किया गया तो उसको ताकत मिल गई अपने आप को साफ करने की, क्लियर करने की। Written with friendship and high regard, Captain One Stale. So this was the subscription that he gave to the letter. He called himself Captain One Stale. So I hope you all must have understood the story.